My dear friends, welcome back to the RK Pharma. Today we are going to discuss Railway Pharmacist Day 24. In this class, we are going to see pharmacodynamics, ADR as well as clinical trial. This is the part number 1. Part 2, see you in the next class. Okay. So, how's the Josh for today's session? Today we are going to conduct a most important topic, that is ADR, pharmacodynamics and clinical trial. Those who are new to the channel, please सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है आपको, ठीक है। देन जो लोग चैनल पे नए हैं, जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हो बाय सर्च RK फार्मा ग्रुप, ओके। या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड दोस्त जिनको खुद से प्रिपेयर करना है, सेल्फ प्रिपेयर करना है, उनके लिए बुक लिस्ट गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक को विजिट कर सकते हो एंड बाय कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज फार्माकोडायनेमिक, clinical trials and ADR. So the first question in this class is that drug which activate a receptor to produce an effect in the opposite direction to that of the well recognized agonist is called. क्या पूछा है? In the opposite direction पूछा है. Activate a receptor to produce an effect in opposite direction. Okay. Drug which activate a receptor to produce an effect in opposite direction to that of the well recognized agonist is called. So the option are here. The first one partial agonist, second one antagonist, third one superagonist, and the last one inverse agonist. Which is the correct one? Opposite direction. Effect produce in opposite direction to that of the well recognized agonist. That is known as, क्या होता है ये होता है that is inverse agonist. क्या होता है? Inverse agonist. Option D is correct one. Which one is correct? Option D is correct one. Got it? क्लिक कर लीजिएगा. Option D is the correct one. That is inverse agonist. Next question. Question number 2. British anti-leviside is the other name of, is known as. British anti-leviside is known as EDTA, dimercaprol, oxymase, and last one penicillamine, oxymase, sorry. So क्या होता है? BAL, that is British anti-leviside is known as, तो ये क्या होता है? That is dimercaprol. क्या होता है? Dimercaprol. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 3. A drug with a narrow therapeutic window. A drug with narrow therapeutic window. The option are here. The first one can be used over a wide range of doses. Second one has limited possibility of side effects in higher doses. Third one has low safety margin. And the last one, drug safer than drug with a high therapeutic window. Which is the correct one? A drug with a narrow therapeutic window. So which is the correct one? तो ये होता है, it has a low safety margin. It has a low safety margin. A drug with a narrow therapeutic window has low safety margin. Option C is correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question. Question number 4. Which of the following doses not act as a second messenger? Which of the following does not act as a second messenger? The first option is that cyclic AMP. Second one, inositol triphosphate. Third one, second. So the first option, cyclic AMP, then inositol triphosphate. Third one, dicyclic glycerol, and the last one, G protein. So यहाँ पे पूछा है does not act as a second messenger. कौन आता है second messenger में?
तो सेकेंड मैसेंजर में आता है हमारा साइक्लिक एएमपी भी आता है, आइनोसिटॉल भी आता है एंड डायसिल ग्लिसरॉल भी आता है। कौन नहीं आता? तो होता है दैट इज जी प्रोटीन नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज अ सेकेंड मैसेंजर? तो इसमें आता है जी प्रोटीन। क्या आता है? जी प्रोटीन। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? जी प्रोटीन। डज नॉट पूछा है ना, जी प्रोटीन। सेकेंड मैसेंजर आपको याद रखना है साइक्लिक, आइनोसिटॉल एंड डायसिल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which of the drug combination are synergistic? Which of the following drug combinations are synergistic? The option are here. The first one, levodopa plus carbidopa. Second one, probenecid plus penicillin. Third one, penicillin plus aminoglycoside. And the last one, all of the above. पूछा क्या है? Drug combinations are synergistic. So which is the correct one? तो इसमें आता है लियोडोपा प्लस कार्बिडोपा, सेकेंड वन प्रोबेंसिड प्लस पेनिसिलिन, थर्ड वन पेनिसिलिन प्लस अमाइनोग्लाइकोसाइड, दैट मीन्स ऑल ऑफ द above. Which is the correct one? Option D is correct one, that is all of the above. Next question, question number 6. Two structurally different drugs providing same experimental conditions are said to be clinical response under the same. Two structurally different drugs providing the same experimental conditions which are said to be clinical response under the same. The first one, chemical equivalent. Second one, biological equivalent. Third one, therapeutically equivalent. And the last one, clinically bioequivalent. Which is the correct one? Two structurally different drugs providing the same experimental condition and are said to be clinical response under the same, that is known as therapeutic equivalence. That is known as therapeutic equivalence. Option C is the correct one. Which one is correct? Option C is correct one. Next question, question number 7. Which of the following drug used to treat cyanide poisoning? Which of the following drug used to treat cyanide poisoning? तो इनमें से कौन सा ड्रग होता है जो साइनाइड पॉइजनिंग में हम यूज़ करते हैं? द फर्स्ट वन इज दैट क्विनिडिन, सेकेंड वन अमाइल नाइट्रेट, थर्ड वन निकोरांडिल एंड द लास्ट वन नेफिडेफिन. विच इज़ द करेक्ट वन? सो विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड पॉइजनिंग? क्विनिडिन होता है क्या? नहीं. निकोरांडिल? नहीं. नेफिडेफिन? नहीं. सो विच इज़ द करेक्ट वन? ये होता है दैट इज अमाइल नाइट्रेट. क्या होता है? अमाइल नाइट्रेट. अमाइल नाइट्रेट यूज़ करते हैं, सोडियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, सोडियम थायोसल्फेट यूज़ करते हैं. सो किस में यूज़ करते हैं? टू ट्रीट द साइनाइड पॉइजनिंग. किसे ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं? साइनाइड पॉइजनिंग. क्या क्या यूज़ करते हैं? अमाइल नाइट्रेट, देन सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम थियोसल्फेट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8. The question number 8 length is too much. The question number 8 is that it is the usual drug reaction that can't be explained by inherent properties of the drug themselves, but instead of some altered characteristic within the patient taking the drug, that is called. क्या होता है? ड्रग डिपेंडेंस होता है, थेरापेटिक इंडेक्स होता है, इडियोसिंक्रेसी होता है, या फिर टेराटोजेनिसिटी होता है. व्हाट इज द करेक्ट वन? इट इज द यूजुअल ड्रग रिएक्शन दैट can't be explained by inherent properties of the drug themselves, but instead of by some altered characteristic within the patient taking the drug, that is called. तो क्या होता है ये होता है दैट इज इडियोसिंक्रेसी. क्या होता है? इडियोसिंक्रेसी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. Which is the correct one? Option C is the correct one. Next question, question number 9. Fastest acting receptor is. These are the option. Which one is the fastest acting receptor? The first one, ligand gated ion channel. Second one, G protein couple receptor. Third one, enzymatic receptor.
एंड द लास्ट वन न्यूक्लियर रिसेप्टार। तो कौन होता है इनमें से फास्टेस्ट एक्टिंग रिसेप्टार? तो कौन होता है? ये होता है दैट इज ligand gated ion channel. Which one? Ligand gated ion channel. Option A is the perfect one. Which one is the perfect? Option A is the perfect one. Next question. Question number 10. Type B adverse drug reaction is. Type B adverse drug reaction is. The first one, augmented effect of drug. Second one, unpredictable bizarre reaction. Third one, effect seen on the chronic use of the drug. And the last one, delay effect of the drug. So which is the correct one? टाइप बी एडवर्स ड्रग रिएक्शन में कौन सा आता है? सो बी से याद रखना है, टाइप बी से याद रखना है आपको बिजार, अनप्रेडिक्टेबल बिजार रिएक्शन। अगुमेंटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग होता है टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन, लिख लेना। थर्ड वन टाइप सी से याद रखना है क्रोनिक यूज, इफेक्ट सीन ऑन द क्रोनिक यूज ऑफ द ड्रग, ये आता है इन टाइप सी में। टाइप डी में आता है दैट इज डिले इफेक्ट ऑफ ड्रग। क्या आता है? डिले इफेक्ट ऑफ ड्रग। टाइप ई में क्या आता है? टाइप ई एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या आता है? एंड ऑफ यूज। क्या आता है? एंड ऑफ यूज। क्या आता है? एंड ऑफ यूज। ठीक है, इन द फर्स्ट आता है अगुमेंटेड, बी में बिजार, सी में आता है क्रोनिक, डी में आता है डिले, ई होता है एंड। ठीक है, ए बी सी डी ई, ई से होता है एंड, डी से होता है डिले, सी से होता है क्रॉनिक, बी से होता है बिजार, ए से होता है आर्ग्यूमेंटेड। ओके, नेक्स्ट वन, ये फर्दर डिवाइड भी होता है। ये जो आर्गुमेंटेड होता है फर्दर डिवाइड होता है साइड इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट में। ये सेकेंड वाला भी डिवाइड होता है एलर्जिक रिएक्शन एंड इडियोसिंक्रेसी में। जो इसमें फर्दर डिवाइड होता है एलर्जिक रिएक्शन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 में। किसमें? ये बी वाला जो होता है फर्दर डिवाइड होता है। एक तो होता है एलर्जिक रिएक्शन, ए होता है एलर्जिक रिएक्शन, एंड सेकेंड होता है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। आपने सुना होगा इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन। इसे आप इम्यूनोलॉजिकल मेडिसिन भी मेडिएटेड भी बोला जाता है, एंड इसे जेनेटिकली मेडिएट भी बोला जाता है। ये एलर्जिक होता है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। टाइप, इसको लिख लेती हूँ मैं, एलर्जिक वाला फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, 1 2 3 4। तो फर्स्ट होता है एनाफाइलैक्सिस, जिसमें आता है आपका पेनिसिलिन वगैरह। टाइप 2 भी होता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल आता है कार्बेमाजेपिन, फेनिटोइन। थर्ड में आता है दैट इज सल्फोनामाइड ड्रग। देन डिले में आता है, टाइप 4 में आता है दैट इज डिले हाइपर सेंसिटिविटी में आता है टी सेल मेडिएटेड में, दैट इज एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन। ठीक है, इसका एक टॉपिक कवर कर लेंगे एडीआर का, अभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो अभी के लिए आप याद रखना बी से बिजार, देन ए से अगुमेंटेड, देन सी से क्रोनिक यूज, एंड डी से याद रखना है आपको डिले, एंड ई से याद रखना है टाइप ई में आता है एंड ऑफ यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द कंजम्पशन ऑफ ड्रग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड एंड फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आर कॉल्ड एज। क्या है क्वेश्चन? द कंजम्पशन ऑफ ड्रग repeatedly to produce profound effect on mood and feeling of well-being are known as. The first one, drug habituation, second one, drug abuse, then drug misconduct, and the last one, misbranded drug. Which is the correct one? The consumption of drug repeatedly to produce the profound effect on mood and feeling of well-being are called as, तो ये होता है that is drug abuse, that is known as drug abuse. Option B is correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question, question number 12, the enzyme that is responsible for conversion of ATP to CAMP. क्या होता है CAMP? अभी बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। क्या होता है? साइक्लिक AMP। ठीक है, the enzyme that is responsible to the conversion of ATP to CAMP is,
क्या होता है? द फर्स्ट ऑप्शन phosphodiesterase, then second one adenyl cyclase, then third one lipoprotein lipase, and the last one guanyl cyclase. Which is the correct one? The enzyme that is responsible for conversion of ATP to CAMP, that is known as adenyl cyclase. क्या होता है? Adenyl cyclase. Option B is the correct one. Which one is correct? Option B is correct one. Next question. Question number 13. Teratogenic effect except. Teratogenic drug effect except. The first one stilbestrol, second one warfarin, third one phenytoin, and the last one डाइसाइक्लोमिन. तो एक्सेप्ट पूछा है, तो कौन कॉज नहीं कराता है टेराटोजेनिक ड्रग इफेक्ट? टेराटोजेनिक इफेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है. टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है. तो कौन कॉज नहीं कराता है टेराटोजेनिक इफेक्ट? एक्सेप्ट पूछा है, तो कौन कॉज नहीं कराता है? ये नहीं कॉज कराता है जो है डाइसाइक्लोमिन. किस कैटेगरी का ड्रग है डाइसाइक्लोमिन? आपको बताना है, ठीक है. सो विच इज़ द करेक्ट वन? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन, दैट इज डाइसाइक्लोमिन. दैट मीन्स कौन से ड्रग होते हैं जो टेराटोजेनिक इफेक्ट कॉज कराते हैं? जैसे कि हमारा स्टिलबेस्टेरॉल, सेकेंड वन वारफारिन, थर्ड वन फेनिटोइन. ये तीनों भी ड्रग होते हैं जो कि क्या कॉज कराते हैं? टेराटोजेनिक इफेक्ट. क्या कॉज कराते हैं? टेराटोजेनिक इफेक्ट. ड्रग की जगह आपको इफेक्ट करना है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 14. Therapeutic index is the ratio of. Next question is that therapeutic index is the ratio of the first one dose, toxic dose and therapeutic dose. Second one therapeutic dose and 0% response. Third one toxic dose and percentage of toxic response. And the last one none of the above. Which is the correct one? थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ. किसका रेशियो होता है? ये होता है टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज. किसका होता है? थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ होता है टॉक्सिक डोज. एक मिनट. थेरापेटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ. किसका रेशियो होता है? ये होता है टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज का. किसका होता है? टॉक्सिक डोज का होता है एंड थेरापेटिक डोज का होता है. थेरापेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? LD50 अपॉन क्या होता है? ED50. क्या होता है? LD50 अपॉन ED50, दैट इज लिथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज. क्या होता है? लिथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज. याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फॉर्मूला फॉर थेरापेटिक इंडेक्स तो ये होता है LD50 अपॉन ED50. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट टॉक्सिक डोज एंड थेरापेटिक डोज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग दैट इज नोन एज. क्या होता है? एक ड्रग जो कि दूसरे ड्रग का एक्टिविटी डिक्रीज कराता है, दैट इज नोन एज एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन and the last one synergist. Which is the correct one? तो क्या होता है? A drug that decrease the activity of another drug that is known as antagonist. क्या होता है? Antagonist. Option A is the correct one. A drug that decrease the activity of another drug that is known as antagonist. Next question, question number 16. Affinity is measure of. Affinity is measure of the first one drugs binding to the plasma protein, second one drug binding to the receptor, third one inhibiting the potency of drug, and the last one bioavailability of the drug. क्या होता है? affinity is measure of. तो क्या होता है? इट्स होता है बाइंडिंग टू रिसेप्टर. ड्रग बाइंडिंग टू रिसेप्टर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. एफिनिटी क्या होता है? ड्रग बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, दैट इज नोन एज एफिनिटी. क्या होता है एफिनिटी? तो एफिनिटी होता है ड्रग्स बाइंडिंग टू रिसेप्टर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17.
What does the term potentiation means? क्या होता है potentiation? The first option is that cumulative ability of a drug. Second one, hypersensitivity to drug. Third one, fast tolerance developing. Third, last one, intensive increase of drug combination. Which is the correct one? What does the term potentiation means? क्या होता है potentiation? तो potentiation होता है that is intensive increase of drug combination. क्या होता है? Intensive increase of drug combination. Next question, question number 18. phase 4 clinical trials are also called as. क्या होता है phase 4 clinical trials? तो देखिए phase फर्स्ट में क्या आता है. The first one is that phase 1 में क्या आता है? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी. क्या आता है? ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी किस में आता है? फेज 1 में आता है. ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी ये आता है फेज 1 में. सेकेंड में क्या आता है? तो सेकेंड में आता है थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. क्या आता है? थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. फर्स्ट में आता है, फेज फर्स्ट में आता है ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी. किस में आता है? फेज फर्स्ट में. फेज सेकंड में क्या आता है? थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. क्या आता है? थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. फोर्थ में क्या, थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है दैट इज थेरापेटिक कन्फर्मेशन. किस में आता है? फेज 4 में. थर्ड में आता है थेरापेटिक कन्फर्मेशन. एंड फोर्थ में क्या आता है? तो फोर्थ में आता है दैट इज पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. क्या आता है? पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. तो किस में आता है? फेज 4 में आता है. किस में आता है? फेज 4 में आता है. तो क्या है करेक्ट आंसर? फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो क्या कहेंगे उसे? दैट इज नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. ठीक है. फर्स्ट में क्या देखा? फर्स्ट में देखा ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी. सेकेंड में देखा दैट इज थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. थर्ड में देखा दैट इज थेरापेटिक्स कन्फर्मेशन. फोर्थ में देखा दैट फोर्थ इज नोन एज पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. एंड फेज 0 में क्या आता है? फेज 0 में क्या आता है? तो फेज 0 में आता है दैट इज माइक्रो डोजिंग स्टडी. क्या होता है इसमें? माइक्रो डोजिंग स्टडी होता है. क्या होता है? फेज 0 में होता है दैट इज माइक्रो डोजिंग स्टडी. क्या होता है? माइक्रोडोजिंग स्टडी. एंड इसके पहले होता है प्री क्लिनिकल. क्या होता है? प्री क्लिनिकल. सबसे पहले होता है हमारा प्री क्लिनिकल जिसमें हम कराते हैं एनिमल स्टडी. क्या करते हैं? प्री क्लिनिकल में करते हैं एनिमल स्टडी. तो फर्स्ट वन प्री क्लिनिकल में करते हैं हम एनिमल स्टडी. सेकेंड आता है हमारा फेज 0. फेज 0 में हम करते हैं माइक्रोडोजिंग स्टडी. एंड उसके बाद आता है टाइप 1 जिसमें हम ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी के बारे में पढ़ते हैं. सेकेंड में आता है हमारा थेरापेटिक एक्सप्लोरेशन. थर्ड में आता है हमारा थेरापेटिक कन्फर्मेशन. एंड फोर्थ में आता है हमारा पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. गॉट इट? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विवेलेंस. Second one, 19 one, which of the following is the type of drug action? Question is that which of the following is the type of drug reaction? Reaction कर लेना. So the first one stimulation and depression. Second one cytotoxic action. Third one replacement and irritation. And the last one all of the above. Which is the correct one? Which of the following is the type of drug reaction? तो कौन होता है इनमें से? कौन सा टाइप होता है? तो ये होता है स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, देन रिप्लेसमेंट एंड इरिटेशन. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. क्या होता है टाइप ऑफ ड्रग रिएक्शन? तो इसमें आता है स्टिमुलेशन एंड डिप्रेशन भी आता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन भी आता है एंड रिप्लेसमेंट एंड इरिटेशन भी आता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. All of the following agent act by intracellular receptor except. All of the following agent act by intracellular receptor except. The first one thyroid hormone, second one vitamin D, third one insulin,
and the last one steroid. Which is the correct one? All of the following agent act by intracellular receptor except. तो एक्सेप्ट कौन होता है? थायराइड हार्मोन होता है, विटामिन डी होता है, इंसुलिन होता है या फिर स्टीरॉयड होता है. विच इज़ द करेक्ट वन? तो ये होता है एक्सेप्ट इंसुलिन. कौन नहीं आता इसमें? इंसुलिन. बाकी सब आते हैं. थायराइड हार्मोन आता है, विटामिन डी एज वेल एज स्टीरॉयड भी आता है. किसमें? इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. द एजेंट एक्ट बाय इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर. इसमें इंसुलिन नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है. प्लीज़ अभी तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो. आपके लिए कितना भी मेहनत कर ले बट आप लाइक भी नहीं करते हो. इस वजह से मैंने अभी सेशन लिया ही नहीं 10-12 दिन. आई थिंक टोटल 12 to 13 डेज हो गए हैं हमारे क्लास. हमारे बीच में कोई कन्वर्सेशन रहा ही नहीं है. सो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी molecule which attach selectively to the particular receptor or site is called as. Any molecule which attach selectively to the particular receptor or sites, that is called chiral drugs, ligand, chelates, transporter. Which is the correct one? Any molecule which attaches selectively to the particular receptor or sites is called that. तो क्या कहेंगे उसे? That is ligand. ठीक है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. any molecule which is attached selectively to the particular receptor or the sites, that is known as ligand. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस किया था मैंने एलर्जिक के केस में. इन द एलर्जिक 2 टाइप बताए थे. टाइप बी में आपको 2 टाइप बताए थे, एलर्जिक रिएक्शन एज वेल एज इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. तो एलर्जिक में टाइप 1 बताया था, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप बताए थे. उसमें से फर्स्ट वाला जो था दैट इज कॉल्ड एज एनाफाइलेक्सिक रिएक्शन. क्या था? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. द फर्स्ट में बताया था एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. सो आपको वही पूछा है, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो क्या होता है? ये होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. ये किस में देखा था हमने? डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. ये साइटोलाइटिक रिएक्शन किस में आता है? ऑलवेज एज वेल एज आर्थस रिएक्शन किस टाइप में आता है ये आपको बताना है. ठीक है. ये 3 आपके लिए होमवर्क है, किस में आता है. ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन. 23rd क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ हिपारिन इज एंटागोनाइज्ड बाय. द एक्शन ऑफ हिपारिन इज एंटागोनाइज्ड बाय. तो किससे एंटागोनाइज होता है? द एक्शन ऑफ हिपारिन इज एंटागोनाइज्ड बाय मेनाडियन, EDTA, नैलोक्सेम एंड द लास्ट वन प्रोटामाइन सल्फेट. तो कौन होता है हेपारिन का? तो ये होता है दैट इज प्रोटामाइन सल्फेट. कौन सा होता है? प्रोटामाइन सल्फेट. एंटीडोट फॉर हेपारिन प्रोटामाइन सल्फेट. ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट वन. एक बार अब एंटीडोट और उसके ड्रग भी देख लेते हैं. जैसे कि अल्कलाइन अगर हुआ, अल्कलाइन के केस में हम क्या देते हैं? डाइल्यूट एसिटिक एसिड. क्या देते हैं? अल्कलाइन के केस में देते हैं डाइल्यूट एसिटिक एसिड. क्या देते हैं? डाइल्यूट एसिटिक एसिड. अगर एट्रोपिन पॉइजन हुआ, एट्रोपिन का अगर पॉइजन हुआ तो उसमें क्या देते हैं? फाइसोस्टिग्मिन. क्या देते हैं? फाइसोस्टिग्मिन. अगर बेंजोडाइजिपिन हुआ तो बेंजोडाइजिपिन का पॉइजन हुआ तो उसमें क्या देते हैं? फ्लूमाजेनिल. क्या देते हैं? फ्लूमाजेनिल. फ्लूमाजेनिल. एट्रोपिन हुआ तो फाइसोस्टिग्मिन. अल्कलाइन वाला केस रहा तो डाइल्यूट एसिटिक एसिड. कार्बामेट्स का रहा तो अगर कार्बामेट्स पॉइजनिंग हुआ तो उसमें क्या देते हैं? एट्रोपिन. क्या देते हैं? एट्रोपिन. कार्बामेट्स, एट्रोपिन. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर रहा तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पॉइजनिंग अगर ऑकर्स हुई तो इसमें क्या देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। क्या देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। अगर साइनाइड पॉइजनिंग हुई तो, अगर साइनाइड पॉइजनिंग हुई तो उसमें क्या देते हैं, सोडियम नाइट्रेट देते हैं, सोडियम थियोसल्फेट देते हैं, अभी बताया था। एंड द लास्ट क्या बताया था, आपको बताना है। देन अगर हिपारिन का रहा तो हिपारिन अभी देखा, दैट इज प्रोटामाइन सल्फेट। क्या देखा, प्रोटामाइन सल्फेट। इंसुलिन, इंसुलिन के लिए देते हैं ग्लूकागॉन। क्या देते हैं, ग्लूकागॉन। कहाँ से सिक्रेट होता है ग्लूकागॉन, आपको बताना है। नेक्स्ट अगर आयरन कंपाउंड रहा तो, नेक्स्ट अगर आयरन कंपाउंड पॉइजनिंग रही तो उसमें क्या देते हैं, डेफोरेक्सामाइन। क्या देते हैं, डेफिरोक्सामाइन। ठीक है। नेक्स्ट लीड पॉइजनिंग हुई तो क्या देते हैं, एडीटीए। क्या देते हैं, एडीटीए या फिर डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड। क्या देते हैं, डाइमरकैप्टोसक्सिनिक एसिड। अगर मॉर्फिन पॉइजनिंग हुई तो क्या देते हैं, नालोक्सोन। क्या देते हैं, नालोक्सोन। ऑर्गेनोफॉस्फेट, अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हुई तो उसमें क्या देते हैं, एट्रोपिन। क्या देते हैं, एट्रोपिन। पैरासीटामोल की अगर पॉइजनिंग हो जाती है ड्यू टू ओवरडोज तो उसमें क्या देते हैं, एन एसिटिलसिस्टीन। क्या देते हैं, एन एसिटिलसिस्टीन। गॉट इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24. Which of the following is not the mechanism of drug absorption through GIT? Which of the following is not a mechanism of drug absorption through GIT? The first one, port transport. Second one, active transport. Then third one, endocytosis. And the last one, metastasis. Which is not mechanism of drug absorption through GIT? तो कौन नहीं होता है इसमें, तो ये होता है दैट इज मेटास्टासिस। विच वन, मेटास्टासिस। ऑप्शन D is the correct one. Which one is correct? Option D is the correct one. Next question. Question number 25. Pharmacodynamic involve the study of following. क्या होता है फार्माकोडायनेमिक में, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। ये क्वेश्चन का आपको होमवर्क करना है, आंसर ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। ड्यू टू नॉइज मैं कुछ भी अब बात नहीं करूँगी। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशंस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।